We have been studying the book of Romans, और हम सभी लोग रोमियो की किताब का अध्ययन कर रहे थे। and we have completed chapter 5. और हम सभी लोग जो अध्याय 5 है उसे पूरा कर चुके थे। So we need to continue from there. और उसके आगे हम 5 अध्याय के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। So, what we have learned in our previous study is the book of Romans is divided into four parts. Chapter 1, verses 1 to 7, we have seen the introduction of the gospel. और हमने रोमियो को अध्ययन करने के हिसाब से 4 भागों में बांटा था। पहले भाग में परिचय है इस सुसमाचार का, जो रोमियो की किताब 1 अध्याय का 1 से 17 तक है। And the second part, chapter 1, verses 18 to chapter 11 till end, there we find the doctrinal components of the gospel. और दूसरे भाग में रोमियो की किताब 1 अध्याय के 18 से 11 अध्याय के आखिरी वचन तक है, जिसमें सुसमाचार की जो सिद्धांत के तत्व हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। So, if we have to understand the gospel, we need to study the doctrinal part. Then we will be able to understand how to live that doctrine. Third part, the lifestyle consistent with the gospel from chapter 12, verses 1 to chapter 15, verse 13. और तीसरे भाग में रोमियो की किताब को जो बांटा गया है 12 अध्याय के 1 वचन से लेकर 15 अध्याय तक 13 वचन में, जहाँ पर सुसमाचार से संबंधित हमारी जो दिनचर्या है अर्थात हमारे जीवन जीने के लिए बातें लिखी गई हैं, उसको हम तभी समझ सकते हैं जब पहले के हम सुसमाचार के सिद्धांतों के तत्वों को समझें। And the last one, fourth part, is conclusion with greeting, chapter 15, verses 14 to chapter 16 till end. और चौथे भाग में हम देखते हैं रोमियो की किताब 15 अध्याय के 14 से लेकर 16 अध्याय के आखिरी वचन तक है, जहाँ पे हम जो अभिवादन और जो अंतिम शब्द हैं उसको देखते हैं। So I'm not going to discuss again the first part because we have already done with, and the recording is available. If you want, you can go through again. और पहले भाग में परिचय जो है सुषमाचार्य को हम देख चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं आप उसे फिर से सुन सकते हैं। And the second doctrinal part is very, very important. और दूसरा जो भाग है जिसमें सुषमाचार की जो सिद्धांतों के तत्व हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। So this doctrinal part of gospel is further divided into four subgroups. The one is the doctrine of sin, the second one is doctrine of justification, and the third one is doctrine of sanctification, and the fourth one is a Christian walk according to these doctrines. और फिर से इस दूसरे भाग को अध्ययन के लिए 4 उप भागों में हम बांट सकते हैं। पहले भाग में हम जो पाप के और उसके सिद्धांत को देखते हैं। दूसरे भाग में हम परमेश्वर की ऊपर विश्वास करके जो हम उद्धार पाते हैं, धार्मिकता हमारी होती है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाते हैं, उसके सिद्धांत को देखते हैं। तीसरे भाग में 6 से 8 अध्याय तक हम पवित्रीकरण के सिद्धांत को देखते हैं। और 9 से 11 अध्याय के बीच में चौथे भाग में परमेश्वर के साथ चलने की जो योजना है उसके सिद्धांत को देखते हैं। So here I missed one point saying that. So before the practice of Christian walk with God based on this doctrine, there is one component which God has a plan for Israel, chapter 9 to 11. और इससे पहले कि परमेश्वर के साथ चलने की एक जो बाइबल के सिद्धांत को हम समझें कि व्यवहारिकता में उनके साथ पहले हम कैसे चलें, उसके पहले 9 से 11 अध्याय के बीच में जो परमेश्वर की जो योजना है इसराइल की और हमारे लिए, उसे जानना जरूरी है। So, as far as doctrine is concerned, these three are main doctrines. One is doctrine of sin, doctrine of justification, and doctrine of sanctification. तो सिद्धांतों के अनुसार से हम देखें तो जो पाप का सिद्धांत है, दूसरा धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत और तीसरा पवित्रीकरण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। So, this chapter 9 to 11, this is not counted as a doctrine, but because there are many, schools of thought, there are many schools of thought. That's the reason why it's not a doctrine, it's a minor, not major. But whereas these three subsections are major, whereas this chapter 9 to 11 is a minor, and doesn't matter, we may disagree, doesn't matter, it doesn't affect our salvation, doesn't affect our sanctification. और 9 से 11 अध्याय के बीच में जो बातें लिखी उसे हम कई बार सिद्धांत के रूप में नहीं समझते हैं, परंतु कई लोग इसे सिद्धांत कहते हैं।
परंतु हम इसे माइनर रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो शुरू के तीन ही हैं। परंतु इसका हमारे उद्धार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी हम सिद्धांतों को अच्छे से समझें तो हम हमारे उद्धार में कोई भी परिवर्तन की बात नहीं होगी। So I think, I don't know, maybe you are listening for the first time. I may have to explain little more when I say majors and minors. और जैसे कि आपको हो सकता है ये बातें पहले नहीं सुने होंगे, तो जैसे हम मेजर और माइनर शब्द यूज कर रहे हैं उसका भी आपको अर्थ मालूम हो जाए तो अच्छा है। What do we mean by major doctrines? What do we mean a minor issue of the scriptures? और जो मेजर का मतलब जो मुख्य सिद्धांत है बाइबल के वो क्या हैं, और माइनर इशू का मतलब जो वचन से संबंधित छोटे छोटे विषय हैं वो क्या हैं, उससे आप समझ लें। So, whatever is linked with the salvation and whatever is linked with the sanctification, that is called majors. और जो भी विषय उद्धार से और पवित्रीकरण से जुड़ा हुआ है, वो जो विषय है वो मुख्य सिद्धांत कहलाता है। We also call them doctrines. और हम उन्हें सिद्धांत कहते हैं। So there we have no negotiations and no compromising, and we will be so stern or so sure and assured that we will be willing to part, but we will never compromise. और ये जो विषय हैं जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता है और इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। ये बात हम समझना है। But minors means there can be different schools of thought because the Bible is not explicitly explained a particular thing. There's some kind of dark area, some kind of unclear passages, some kind of difficult passages in the scriptures, and we struggle to interpret, and thereby there can be many schools of thought. और दूसरे तरफ पे कई सारे जो छोटे छोटे वचन से संबंधित विषय हैं, उसके अंदर कोई बात जो है हम कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि वो कुछ बातें अंधेरी में हैं और कुछ कठिन बातें बाइबल में लिखी गई है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। उनको इस विषय में कई सारे विचार लोग देते हैं, इसे हम माइनर इशू कहते हैं। So, what I understood with a little walk with the Lord is whatever we need, God very clearly explained in the scriptures without any difficulty. Even a simple and common man can easily understand. और जहां तक मैं परमेश्वर के साथ चला हूँ आज तक, मैंने ये बात को समझा है कि मनुष्य को जितनी बातें जरूरत हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर ने वचन में वो सारी बातें स्पष्ट रीति से लिखी है। It does not mean to say that apart from God, we can understand all theology of the scriptures. I mean, the Bible. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन और थियोलॉजी को पढ़ के ही हम परमेश्वर से अलग होकर सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। We need definitely the help of the Holy Spirit. The Spirit of God has to help us to understand. He has to open our minds. Then only we understand this truth, small or great, majors or minors. It is the ministry of the Holy Spirit. Not everybody will understand, but those who love the truth, those who desire to follow the truth, they will definitely understand. Those who are trying to sail in two boards and winds and fancies will not work. तो ये बात हम समझना है कि परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा हमें समझ देती है और हमारे मन को खोलती है कि हम चाहे मेजर विषय हो या मुख्य सिद्धांत हो या माइनर इश्यू से समझ सके। लेकिन ये बात तब की है जब हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं। अगर हमारे So प्रेम में से है तब और अगर हम उसे वास्तव में परमेश्वर को हम अनुसरण करते हैं, तब उसकी सच्चाई को हम समझ सकते हैं। अगर हम प्रभु को सच्चाई से अनुसरण ना करें और हम इधर उधर की कुछ विषयों को लेकर या अपने फायदे के कारण कुछ करें, तो हो सकता है हमें सच्चाई समझ में ना आए। So the doctrine of sin, the doctrine of justification, the doctrine of sanctification, they are doctrines. They are fundamentals and no negotiations. And we need to definitely should be very much concerned about it. But whereas 9 to 11, the God's plan for Israel and how God is going to work with Israel, we are not very sure because it's a difficult passages, but we will try to understand as much as revealed by the power of the Holy Spirit.
और प्रियो, इसलिए जो पाप का सिद्धांत है, धर्मी ठहराने का सिद्धांत और पवित्रीकरण के सिद्धांत को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये आधारभूत सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता। और इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु 9 से 11 वचन के बीच में जो इज़राइल के साथ परमेश्वर की योजना है, वो इसे समझना थोड़ा कठिन है, और इसके कार्यों को हम समझ आसानी से समझ नहीं सकते। So many people, what they do is, what is not clear, they will spend lot of time. What is very clearly given to us to obey, that they don't care. So they want to have something complicated, something new, something mysterious, and something, I think that's not a good way to pursue our spirituality. और प्रियो, कई लोग क्या करते हैं, जो बातें स्पष्ट है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा समय नहीं देते, और जो बातें स्पष्ट नहीं है बाइबल में उसको बहुत ज्यादा समय देते हैं। वो कठिन बातों को समझने के लिए बहुत सारा समय लगा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आत्मिकता में बढ़ने के लिए ये एक अच्छा मार्ग नहीं है। Deuteronomy chapter 29 and verse 29 says that all mysteries belongs to God, and it is up to God what he will reveal and what he will not reveal. Let his will be done. God knows much better because he is the creator and he is the owner, and we are just creature. God is not obligated to tell everything what I want or what I require. और ये बात हम समझते हैं, वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 29 के 29 में, कि परमेश्वर ने जितनी बातें रची है वो गुप्त बातों को अपने वश में रखा है। वो उसकी मर्जी है कि वो किसे प्रकट करे किसे ना करे, क्योंकि परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, मालिक है, स्वामी है। वो जो चाहे उसे प्रकट करे, अपनी गुप्त बातों को वो जो चाहे प्रकट ना करे। हम केवल उसकी रचना है, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा से आगे हम बढ़ के कुछ जो बातों को, गुप्त बातों को जान नहीं सकते। So a pot cannot question potter. इसीलिए वचन में हम देखते हैं कि कभी भी एक जो मिट्टी का बर्तन है वो कुम्हार से सवाल नहीं कर सकता है। God is the creator. He is the owner. He knows much better. We may live 100 years or 120 years at the most, but God is from eternity to eternity. God is beyond human comprehension and understanding. And we believe God of the Bible is always good God, a loving God, a God of wisdom, and God faithful. That I have no question if God doesn't reveal. I may struggle to understand, doesn't matter, but I will not question God. I will submit whatever he has given to me clearly. I'll obey. And as God keeps opening little by little, as I keep walking with God, I praise God. Doesn't matter, because I am safe with these majors, because minors doesn't matter here and there. I don't take much time to to understand what I cannot. और इस बात को हम समझना है कि परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, वो मालिक है, वो सब जानता है, हमसे बहुत अच्छे से जानता है। हमारी उम्र केवल 100 साल से 120 साल की है। परमेश्वर तो अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, और मनुष्य की मानवीय समझ से परे है परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के उस महान प्रेम और उसकी बुद्धि, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखना है। कई बार हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते। हाँ, जो बातें स्पष्ट हैं हम उसे मानना चाहिए, जो बातें कठिन हैं हो सकता है परमेश्वर उसे हमें समझा दे, तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हम परमेश्वर से कई सारे जो सवाल हम नहीं कर सकते हैं। We are responsible for what we have been given to us. और हम उसी के लिए जिम्मेदार हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन बातों के लिए। So we have seen, let me just review the doctrine of justification. So, chapter 3, verse 22, talking about the righteousness of God, that is through faith in Jesus Christ. Chapter 3, verse 24, being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. Chapter 3, verse 25, propitiation in his blood through faith. और हमें जो दूसरे भाग में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, उसमें मुख्य 3 बातें लिखी गई है। पहला 3 अध्याय उसके 22 वचन में बताया गया है कि किस प्रकार यीशु मसीह के कारण जो है हम धार्मिक कहलाए जाते हैं। यीशु मसीह की उस पर विश्वास करने से
हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। 3 अध्याय के 24 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कारण, उसके छुटकारे की कीमत देने के कारण हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और तीसरे अध्याय के 25 वचन में लिखा है कि विश्वास के कारण यीशु मसीह का जो जो लहू के द्वारा हमारा प्रायश्चित होता है, इसके कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। We have discussed at length in our previous Bible study. और इसके विषय में हमने पिछले अध्ययन में हमने चर्चा कर चुके हैं। So we have seen that five solos declared by Reformed theologians: sola scriptura, scriptures alone, not dreams, not many human; solus Christus, Christ alone, not through any other person or media or philosophy; sola fide, faith alone, not faith plus works; sola gratia, grace alone, not by any human merit; soli Deo Gloria, glory to God alone and nothing else. और हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था, जो रिफॉर्म थियोलॉजी में जो 5 प्रकार के सोलाज है, मतलब केवल जो बोलते हैं हम, केवल शब्द। सबसे पहला सोला स्क्रिप्चर, मतलब केवल वचन के द्वारा, ना किसी मनुष्य के दर्शन या बुद्धि के द्वारा, परंतु केवल वचन के द्वारा। दूसरा, केवल मसीह के द्वारा और किसी फिलॉसफी अलग बात के द्वारा नहीं। दूसरा, केवल विश्वास के द्वारा, ना कि कामों के द्वारा। चौथा है केवल जो सोला ग्रेसिया लिखा है, मतलब केवल अनुग्रह के द्वारा। और पांचवा लिखा है सोलियो दियो ग्लोरिया, मतलब केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। We have seen that the old status was helpless, chapter 5, verse 6, ungodly, sinners, enemies. That's what Apostle Paul writes in chapter 5. We were helpless, we were ungodly, we were sinners, and we were enemies of God. और 5वें अध्याय के 6वें वचन के आगे देखेंगे तो हमारी जो पुरानी मानसिकता कैसी थी, हमारा पुराना जो व्यक्तित्व कैसा था, या हमारी पुरानी जो स्टेटस कैसी थी। वहाँ लिखा है 5 अध्याय के 6 वचन में कि हम निर्बल थे। 5 अध्याय के 6 में लिखा है हम भक्तिहीन थे। 5 अध्याय के 8 में लिखा है कि हम पापी थे। और 5 अध्याय के 10 में लिखा है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे। But whereas such people we were, but by His grace we were redeemed and we were declared righteous, and God called us to be saints and He added us into His family. परंतु हम देखते हैं कि प्रभु ने जो हमारे लिए कीमत चुकाई, उस काम के द्वारा जो हमारा नया जो स्टेटस है, या जो नई हमारी स्थिति क्या हो गई है कि हम छुटकारा पाए हुए लोग बन गए हैं 5 अध्याय के 6 वचन के अनुसार। दूसरा, हम धर्मी कहलाए जाते हैं 5 अध्याय के 6 वचन के अनुसार। तीसरा, प्रभु ने हमें संत के रूप में, एक भक्त के रूप में देखते हैं 5 अध्याय के 8 वचन के अनुसार। और परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया है 5 अध्याय के 10 वचन के अनुसार। Justification is a legal term, the sentence of the judge, that means God the Father, in favor of condemned men, that is you and I, clearing yours and mine of all blame and freeing us of every charge. That is justification means. धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है? जो एक कानूनी जो एक शब्द है, अगर कोई धर्मी ठहराया गया है तो इस शब्द का मतलब ये है कि कोई न्यायी है जिसने एक दोषी व्यक्ति को उसके हर एक जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन तमाम आरोपों से उसे मुक्त कर दिया है, और हर प्रकार के अपराध से उसे मुक्त कर दिया है। उसे ही कहते हैं धर्मी ठहराया जाना। And then justification, in Greek it is called dikiosis, which is connected linguistically with righteousness, dikiosune. और अगर हम धर्मी ठहराए जाने को अगर यूनानी भाषा में पढ़ें, जिसका मतलब है डिकायोसिस, ये जो शब्द है ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ एक शब्द है। So 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says that he who knew no sin made sin for us so that we may become the righteousness of God. और दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय के 21 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। That means the justification happened because the righteousness of Jesus Christ is imputed upon us, because our sin was imputed upon him. That means the great exchange. Our sin was laid upon him,
and his righteousness was accounted into my life. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है इस वचन के अनुसार? दूसरा कुरिन्थी 5:21 के अनुसार कि हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया है और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर डाली गई है। मतलब एक यहाँ पे लेन देन हुआ है, अर्थात हमारे पापों को यीशु मसीह ने ले लिया और उसकी धार्मिकता हमें दी गई है। उसके कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं और वो जो यीशु मसीह की धार्मिकता है उसमें हम धर्मी गिने जाते हैं। So, justification by faith means a new standing before God. It is just one time act, need not be repeated again and again. Once it is done, and it is done forever. और जो धर्मी ठहराए जाने की जो शब्द है उसको अलग से और अगर अपन समझें तो उसका जो मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक बार हमें छूट मिल गया है और ये हमेशा के लिए, इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। Once you are called as a son, that's it, you are a son because you are born into that family. And that relationship cannot be severed or it cannot be disconnected. The relationship is relationship because you are born, he is your father and you are his son. So that cannot be done once enough. Once you are born into the family, that's it. That relationship cannot be deleted or avoided, cannot be undone. और इसका मतलब ये प्रियो कि एक बार हमारा संबंध जुड़ गया है, हमने नया जन्म पा लिया तो हमारे पिता से एक संबंध जुड़ गया कि हम उसके पुत्र हैं और उनके परिवार में हम शामिल हो गए हैं। ये संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। There's a reason why we believe that salvation is eternal. Once saved, saved forever. इसलिए हम उद्धार के सिद्धांत को समझते हैं कि उद्धार हमेशा के लिए होता है। जब मनुष्य को एक बार उद्धार पाता है तो वो एक बार के लिए और हमेशा के लिए पा जाता है। What really happens when a person is justified by faith? That means justification is a legal term. Four things will take place. Number one, a person who is justified by faith will have access into the most holy presence of God. He can call God Abba Father. And secondly, he or she was treated not guilty because his sins are forgiven. He was cleansed with the precious blood of Jesus Christ. Thirdly, a regeneration took place. A dead spirit is revived because the Holy Spirit enters into his life or her life. And an amazing relationship as God as Father and Son or daughter will have relationship and fellowship. तो यहाँ जो वचन में लिखा है प्रियो कि हम जो विश्वास के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं उसमें चार मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है? पहला बिंदु है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर मिलता है, इसका मतलब हम परमेश्वर को पिता और अब्बा कहने का अधिकार मिलता है। दूसरा, हमारे जो अपराध हैं वो क्षमा किए जाते हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह के लहू के कारण क्षमा मिलती है। तीसरा है कि हमारा पुनरुत्थान होता है एक फिर से क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मिलता है। और चौथा है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता और एक संगति में हम जुड़ जाते हैं। ये चार मुख्य घटनाएं होती है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से। So, this we have already discussed in the previous Bible study, but because there was a long gap, I just want to remind you once again. और ये पिछले अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं परंतु चूंकि ज्यादा हमारे अध्ययन में अंतर हो गया था इसलिए मैंने इसे फिर से दोहराया। And then the next section we need to study is chapter 6, 7, and 8 talks about doctrine of sanctification. और छठवें, सातवें और आठवें अध्याय में हम देखते हैं जो पवित्रीकरण का सिद्धांत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। So, chapter 6 talks about the unity in Christ, that means sanctification. And chapter 7, the struggles a believer will have. And then chapter 8, the victory and preservation we find in chapter 8. और हम यह देखते हैं जो 6, 7, 8 वचन में जो पवित्रीकरण के सिद्धांतों में पहला छठवें अध्याय में जो है वो
पवित्रीकरण में मसीह के साथ हमारी एकता के बारे में लिखा है। दूसरा, 7वें अध्याय में जो मसीहों के साथ जीवन में जो संघर्ष है उसके विषय में लिखा है। और तीसरा, जो 8वें अध्याय में जो विजयी जीवन हम जीते हैं मसीह में और उसको विजय को कैसे बनाए रख सकते हैं उसके बारे में लिखा है। So, chapter 6, we need to read the first five verses so that we will be understanding how we are united in Christ in the process of sanctification. और जब हम अध्याय 6 के 1 से 4 वचन को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि पवित्रीकरण के प्रक्रिया में हम मसीह से कैसे जुड़ जाते हैं। So, I'm reading chapter 6 of book of Romans, verses 1 to 5. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do we not know that as many of us as we were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we are buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. और रोमी की किताब अध्याय 6 वचन 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। Apostle Paul is trying to convince us by explaining a beautiful truth that we were united in Christ when Jesus was crucified, when Jesus was died, and when Jesus was rose again victoriously on the third day. और पौलुस इस बात का वर्णन करते हैं कि हम मसीह के साथ कैसे जुड़ते हैं। हम मसीह के साथ तब जुड़ते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और गाड़े जाते हैं और फिर से जी उठते हैं। So here we see in verse 3, do you not know? और जैसा कि वचन 3 में यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? We should know. और हमें जानना चाहिए। If you do not know, we better know it. और अगर हम नहीं जानते हैं तो अच्छा है कि हम इसे जान जाएं। We should be able to say that, yeah, I know, I know. तब हम कह सके कि हाँ, मैं जानता हूँ। What we know? और हमें क्या जानना है? What happened when Jesus was crucified 2000 years ago was, when he was crucified, I was in the Lord Jesus Christ because I was baptized into him. Because I was baptized into Christ, when Jesus was crucified, I was also crucified along with Jesus Christ. और हमें क्या मालूम होना चाहिए? वो ये मालूम होना चाहिए कि आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो मैं उनमें था और मैं मसीह में था, और वो उनके साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उनमें होकर। And we should also know that when Jesus died, I died with him. When Jesus was buried, I was buried with him. When Jesus was resurrected, third again victoriously from the death, I also was risen again along with the Lord Jesus Christ. I should know that. और मुझे मालूम होना है कि जब यीशु मसीह जब मृत्यु को प्राप्त किए तो उनके साथ मैं भी मर गया था, और जब वो गाड़े गए तो उनके साथ मैं भी गाड़ा गया था, और जब वे तीसरे दिन मृत्यु को हरा के जी उठे तो उनके साथ मैं भी जी उठा था। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। Apostle Paul was talking about doctrine of imputation. और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है वो किसी चीज को डाले जाने या धारण करने की सिद्धांत के बारे में भी बताते हैं। Please turn with me to Romans chapter 5, verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses,
even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. और जैसे कि रोमियो की किताब 5 के 14 में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। So, if we read from verse 12 and 13, we will understand little more. Therefore, just though one man's one man's sin, one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed where when there is no law. और रोमियो 5 12 और 13 को पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। And then verse 12, you please try to focus and try to understand this particular word by word or line by line. Just as through one man sin entered the world. Who is that one man? Adam. Death और एक through sin. And thirdly, thus death spread to all men because all sinned. और इस बात को एक एक वचन एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़ें तो आप समझेंगे। 5वें अध्याय के 12वें वचन में जो लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वो एक मनुष्य कौन है? वो आदम है, जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया, जिसके द्वारा मृत्यु जो है सभी लोगों में फैल गई। So, although I was not there when Adam committed sin in Genesis chapter 3, but Adam sinned, we were all there in Adam, and because we are the children of Adam, right? और जिस समय आदम ने पाप किया उस समय हम उसके साथ नहीं थे, परंतु हम लोग आदम की संतान हैं, इसलिए हम आदम में हैं ऐसा हम जाने जाते हैं। So, in the DNA, my great, 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 great grandfather's characteristics are there in me because I'm born to him. All human beings are और born अगर to मैं Adam. और मैं अगर अपने जो गुणसूत्र को देखूं जिसे हम डीएनए कहते हैं, और उसके कारण जो मेरे डीएनए में कौन सी बातें हैं, जो मेरे दादा के दादा परदादाओं से जो पूर्वजों से जो उनके जीवन से जो व्यवहार था, पाप था, वो जो है वो उनके द्वारा मेरे डीएनए में आ गया है। So, Adam's sin was imputed upon me. और ऐसे ही आदम की जो पाप है वो मेरे पूर्वजों से होकर वो मुझ पर आ गया है। And please read verse 14, the last part. What is that last part? So, who is a type of him who was to come? If you have to understand a line before, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, Adam is a type of him who was to come. That means he is the first Adam and Jesus Christ is the last Adam. और यहाँ जो वचन में 14 वचन में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय के 14 वचन के आखिरी भाग में, कि वे जो व्यक्ति हैं जो आने वाले हैं, जिन्होंने जे आदम के समान तो पाप नहीं किया है, परंतु आदम के अपराध के समान उन पर भी मृत्यु ने राज्य किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो हम पर आदम के कारण आ गया है। इसका मतलब वो पहला आदम जो कहा गया है वो आदम है, और जो अंतिम आदम है वो यीशु मसीह है। So I came from Adam, and so I have inherited the nature of Adam. और चूंकि मैं आदम से आया हूँ, इसलिए आदम का जो स्वभाव है वो वंशानुगत के अनुसार मेरे अंदर है। But here I am baptized into Christ. परंतु जब मेरा बपतिस्मा मसीह में हो जाता है, That means I am immersed into Christ. I became one with Christ. इसका मतलब मैं मसीह में डूब गया हूँ और मैं मसीह में एक हो गया हूँ। If we can theologically try to understand the time gap between me and Adam, it could be 2000 years from here to Christ
and then from Christ to Adam 4000 plus. और अगर मैं अपने यहाँ से, अपने जीवन से आदम के जीवन को मैं जोड़ के देखूं, तो मेरे से अभी 2000 साल पहले मसीह का आना हुआ, और मसीह के आने से 4000 साल पहले आदम का आना हुआ है। That means from Adam to Abraham 2000 years, from Abraham to Christ 2000 years, from Christ to us now present time 2000 years. This all together 2000 plus 4000 plus we do not know how many, approximately less than 10,000. All these calculations theologians did because there was a lifespan was clearly portrayed in the scripture, in the genealogy. Adam lived this many years, and his son lived this many years, and his son lived this many years. And when we total all those things, comes to approximately 2000 years up to Adam, और Abraham. अ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार जब आदम था, उसके 2000 साल बाद अब्राहम था, अब्राहम के 2000 साल बाद यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह के 2000 साल बाद हम हैं। तो इस प्रकार इस समय को ऐसे जोड़ा गया है कि बाइबल में जो थियोलॉजियंस हैं उन्होंने अध्ययन किया है कि सबकी जीनियोलॉजी में उनका उम्र लिखा है कि आदम कितने वर्ष का था और बाकी सभी लोग कितने वर्ष के थे, उसके हिसाब से ये जो वर्ष का जो है मापदंड जो है यहाँ पे ऐसा जोड़ा गया है। So Adam's sin was imputed upon me because I'm born to Adam, and my sin was imputed upon the Lord Jesus Christ, and his righteousness was imputed upon me. So here the Bible says that I am baptized into Christ, I was one with Christ. और देखते हैं कि आदम का जो पाप का स्वभाव था वो हमारे अंदर आ गया, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनका जो, उनमें हमने बपतिस्मा लिया, तो हम यीशु मसीह में हम समाहित हो गए, उनके साथ एक हो गए। इसलिए यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर में इसके द्वारा डाली गई। Then you may ask a question. तब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं। Okay, brother, I understand that Adam's sin is imputed to me because I also know that when I was born, I have that Adamic nature, a nature which, rebels against God. I knew that apart from Christ, this Adamic nature, I cannot, handle this. I understand that. But Jesus was 2000 years ago. How can I be baptized into him? आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि चूंकि हम आदम के वंशज हैं और उनके वंशानुगत डीएनए हमारे अंदर है, तो उनका पाप हमारे अंदर आ गया, उनका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, और हम उनमें कैसे थे, और हम में उनकी धार्मिकता कैसे आ गई, ये बात हम समझ नहीं पा रहे। ये सवाल आप पूछ सकते हैं। So we have already seen the doctrine of justification by faith. When I put my faith in Jesus Christ, that he died on the cross of Calvary on my behalf in my place, what the price I should pay because of my sin, Jesus paid as a lamb of God, shed his precious blood, and he was buried and rose again. Bible says just because of that faith in Jesus Christ and the finished work of redemption, Bible says I'm justified. और जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरे मेरे लिए और मेरे पापों के बदले यीशु मसीह ने कीमत चुकाई अपना लहू बहाकर, और उस पर ये विश्वास करके मैं धर्मी ठहराया जाता हूँ, क्योंकि उसके उस पर विश्वास करने से मुझे छुटकारा मिलता है। इस कार्य को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना कहते हैं। So we have already seen the doctrine of justification that because the blood of Jesus Christ cleanses all my sins, because the blood of Jesus Christ remove the unrighteousness of because of my sin, and he declared me holy, saying that you are not guilty, and I have an access to God. The Spirit of God enter into my life. I am regenerated. I am connected to God. I have access to God. We have already seen the implications and reflections of the justification by faith. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के कारण हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हमारे जो अधर्म हैं
वो मिटाए गए हैं और उनके पुनरुत्थान के कारण हमारा पुनरुत्थान हुआ है। इस कारण हम देखते हैं कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। That's why Apostle Paul says in verse 3, do you not know? इसीलिए पौलुस कहते हैं कि क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं। Verse 3, chapter 6. Do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. Therefore, we were buried with him through baptism into death, and just as Christ was raised from the death by glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. और इसलिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो अध्याय 6 के 3 और 4 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। Apostle Paul is connecting one thought to another. या पौलुस जो है एक विचार को दूसरे विचार के साथ जोड़ रहे हैं। In the verse 3, in the beginning line, do you not know? So by knowing what is happening in the verse 4, the last part, even so we also should walk in newness of life. और यहाँ पौलुस विचारों को जोड़ रहा है। तीसरे वचन में वो कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, परंतु चौथे वचन में जब हम जानने की बात हमारे जीवन में आ जाती है, तब वो कहता है कि तुम नए इस जीवन की सी चाल चलो। Just as we had faith when we listened to Christ of the finished ministry of redemption on the cross of Calvary, we are now knowing. We did not know, but now we know that when Jesus died on the cross, he did not die all by himself alone. I was there in him, and I was crucified with him. I died with him, and I rose resurrected along with him on the third day. और विश्वास के द्वारा मसीह की जो हम सुनने के कारण हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर समाप्त किया, उसके कारण हमें पता चलता है कि मैं भी मसीह के साथ उस समय पाप मेरा जो था वो मसीह के ऊपर गया, मैं उनके साथ चढ़ाया गया और उन्हीं के साथ गाड़ा गया और उनके साथ फिर जी उठा। So I knew, and then I believed, and then I have reckoned, and then I am yielding. These are all the four statements we understand in chapter 6. इसलिए छठवें अध्याय में आप देखेंगे तो छठवें अध्याय के छठवें वचन में लिखा है कि हम जान पाए, जहाँ जैसे लिखा है मैंने उसे जाना। उसके बाद 6 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है मैंने उस पर विश्वास किया। उसके बाद 6वें अध्याय के 11 वचन में जैसे लिखते हैं, व्हाट दैट मीन्स अंकल, रिनॉग्ड मीन्स। Reckoned means counted. ओके, Counted. ओके अंकल। उसके बाद तीसरे भाग में देखेंगे कि हम भी उनके साथ गिने गए हैं इस भाग में। और चौथे भाग में लिखा है कि मैं उनके साथ बचाया गया हूँ। Yes, surrender or submission. और Yielding means submission. चौथे भाग में लिखा गया कि मैं उनके साथ समर्पित हो गया हूँ, उनमें उनके अधीन हो गया हूँ। So let me repeat. I know, I have believed, I have counted upon, I have submitted myself unto him. और यहाँ लिखा है कि मैं उसे जाना, उसके बाद मैंने उस पर विश्वास किया, मैं उनके साथ गिना गया और मैं उनमें समर्पित हो गया। So what I know, मैं क्या जाना? I have been crucified with Christ because I am united into Christ through baptism. I was buried with Christ because I was united with Christ in the baptism. And I was risen along with Christ through his resurrection because I was baptized, I was united with him. और हम क्या जाने? हमने ये जाना कि यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के कारण मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ बपतिस्मा लेने के कारण मैं
उनके साथ गाड़ा गया और उनके साथ बपतिस्मा लेने के कारण मैं फिर से मेरा पुनरुत्थान हुआ। This is what I know. और ये लिखा है कि मैं इसे Is जान गया। something more than know, what is called believed, और जब कोई चीज को कहा जाता है कि जानकारी से ज्यादा मुझे अब समझ में आ गया, तो कहा जाता है कि हाँ, अब मुझे विश्वास है। which is called convictions. और इस जानने विश्वास को कहा जाता है कि मैं कायल हुआ या मेरा जीवन बदला। This is the work of the Holy Spirit who convicts me, saying that, hey man, maybe you are after 2000 years, but 2000 years ago when Jesus died, you were there in Him, you were crucified, you were buried, and you were risen again along with Christ. That is the convictions of the Holy Spirit. We begin to believe because we know that. और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं, हमें कायल करते हैं, जिसे हम कन्विक्शन कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके हमें कायल करते हैं, और वो हमें विश्वास में लेकर आते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह में हम क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके साथ गाड़े गए थे और उनके साथ जी उठे थे। So, if I read from verse 5 onwards, you'll be able to understand if you could understand the explanation what I've given. 5वें वचन के आगे जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसके स्पष्टीकरण को समझ पाएंगे। For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we should also live with him, knowing that Christ has been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, that's important. So you believe because you know it. You know it, you believe it, and verse 11 he says you reckon. So you count that. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but live to God in Christ Jesus our Lord. रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 5 से 11 तक हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Verse 12 onwards, therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not dominion over you, for you are not under law, but under grace. और 12 से 14 वचन के बीच में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So, because of these convictions, what happened is when I'm already died with Christ, because Christ died once for all for sins, He will not repeat that process of death again and again. Once for all, He died, once for all, He was buried, once for all, He is risen again. This process will not be repeated. In the same way, I was there in Him
2000 years ago, when he was crucified, when he was died, when he was raised again with him, I was baptized into him. Because of this union, I walk in newness of life. और यहाँ पे जो कन्विक्शन लिखा हुआ है, अर्थात जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो कायल होने का जो शब्द है वो क्या है, वो बताता है, पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि जब हम मसीह के साथ थे, जब मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए मरा और उस समय हम उनके साथ गाड़े गए और उनके साथ जी भी उठे। ये घटना 2000 साल पहले हुई है, परंतु वो बपतिस्मा के साथ हम यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं और ये एक बार हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, ये बपतिस्मा में मसीह के साथ जुड़ने के कारण ये हमारे साथ हो गया। When I was studying this part of scriptures, I was actually struggling to believe how it is possible Jesus was 2000 years ago, but I am not there when Jesus crucified. I never knew that it all was told me later. I was not there. When I was not there, how can I be in him, and how can I was crucified in him and buried with him and rose again? I was actually struggling. और मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत काफी इसे संघर्ष करना पड़ा समझने के लिए कि भाई मैं 2000 साल पहले था नहीं, तो उस समय जब मसीह मर गया तो मैं उस समय था नहीं, तो वो मेरे पापों के लिए कैसे मर गया और मैं उसमें कैसे था, मैं उसके साथ कैसे जी उठा, ये सब बातें मुझे समझने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। So, what helped me to realize or reconcile in the struggle, let me also share with you. और जिन बातों ने इस बातों को समझने के लिए इस संघर्ष में मेरी सहायता की, उसे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। Please remember, you are born again because you believed that when Jesus died, he paid the price on your behalf as your substitute, as your representative. और एक बात याद रखिएगा कि आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उन्होंने आपके लिए कीमत चुकाई और आपकी जगह पर उन्होंने खड़े होकर उस पाप को भुगतान किया और आप वहां पर आपके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कीमत चुकाई, आप इस बात को जब जानते हैं। So, these two things we need to remember theologically. As substitute, Jesus paid the price on my behalf on the cross of Calvary. As my representative, he died on the cross of Calvary. I will try to explain these things much later. But one thing we need to understand here is, as my substitute means what the price I should pay because of my sins. Jesus paid the price as my substitute. और यहाँ पे दो बातें हमें समझना आवश्यक है, उसमें से पहली बात है कि हमारे बदले, सब्स्टिट्यूट का मतलब मेरे पाप के बदले मेरे स्थान पर यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। So I believed that, and a transformation took place in my life. Amazing transformation. What is the transformation? My sins were forgiven. I was cleansed with the precious blood of Jesus Christ. I was a new creation. My life was changed. All these have happened. It's all by faith, by belief. और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये जो बदलाव आया, वो क्या बदलाव हुआ कि यहाँ पर मुझे पाप क्षमा के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे धोए जाने के कारण मैं एक नई सृष्टि बन गया और मेरा जीवन बदल गया। ये सब चीजें मसीह पर विश्वास करने के कारण मेरे जीवन में हुआ। This truth was convicted by the Holy Spirit, and I was so sure, yes, it is true, it is not lie, it is not some cock and bull stories, it is absolutely correct, it is historical, this has happened, although I was not there, but it is true because it is written in the scripture. And when I heard the truth, I was convinced that the convictions of the Holy Spirit happened deep within me, and I believed it, and so I was transformed. I'm cleansed. I'm added into the family of God. I enjoy the presence of God, the spiritual benefits, and all the blessings thereof. All by faith, not by physical sight or physical visitations. और जब ये जो घटना हमारे लिए आज से कितने सालों पहले हुई, इस सच्चाई को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जाना, तो पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया कि ये जो इतिहास में हुई घटना, ये परमेश्वर के द्वारा बताई गई जो उसकी वचन की सच्चाई है, ये घटना है। और पवित्र आत्मा ने हमें बताकर हमारे अंदर कायल हमें किया, तब हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं
और इस कायल होने के कारण जब हम इस सच्चाई को सुनते हैं तो हम विश्वास में आते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति में चलने लगते हैं और मसीह के आत्मिक जीवन का लाभ होने लगता है, हम आशीषित हो जाते हैं। और ये सब विश्वास के कारण होता है, हमारे शारीरिक कामों के कारण नहीं होता है। This is the one thing. और ये है एक बात। And the other thing is, I was convicted that when Jesus died on the cross of Calvary, he is not just an ordinary man. और दूसरी पहलू हम दूसरी बात क्या समझते हैं कि पवित्र आत्मा में कायल करके विषय डालते हैं कि जब यीशु मसीह मेरे लिए मर गया उस समय वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में वहां चढ़ाए गए। If he is only one ordinary single person like you and me, it is definitely true that that one person cannot bring many hundreds and thousands and crores of people into the salvation. It is not possible, because if it is only one ordinary human being like you and me, it is impossible to save many. Perhaps maybe he can save one person, because one is to one. और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में क्रूस में चढ़ाए गए हैं, तो ये बात हम सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कितने सारे लोगों के पाप को अपने ऊपर लेके जा सकता है। स्वाभाविक है कि एक साधारण व्यक्ति हो सकता है एक व्यक्ति के पापों को ही लेके अपने ऊपर जाके उसे बचा सके। Please remember, Jesus Christ who died on the cross of Calvary, he is not just ordinary human being like you and me. He is God man. He is God man. He is God and truly human. और ये बात हम याद रखना है कि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वो 100% परमेश्वर भी थे और 100% मनुष्य भी थे। इसीलिए वहां पर ये अद्भुत घटना वहां हुई है। So when we try to calculate percentage, there is an issue. There is a reason why I did not say 100%. So theologians they explain saying that truly God and truly man. और चूंकि ये परसेंटेज या प्रतिशत वाली बात हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका कोई कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए जो थियोलॉजियंस है वो कहते हैं कि पर यीशु मसीह सच में परमेश्वर है और वो सच में मनुष्य है। If Jesus is only ordinary human being, he cannot take the wrath of God. It is impossible. और अगर यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां रहेंगे तो वो कभी भी परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकते हैं। Do you know the intensity of the wrath of God? और आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध कितना भयानक होता है। Even sinner in the hells of fire for eternity will not be able to pay sum total of the wrath of God. और आप जानते हैं कि एक पापी जो अनंत काल के लिए नरक में जाता है, वो सारी जो इतने अनंत काल में उसकी जो जलन होती है वो इसके बाद भी परमेश्वर के क्रोध की वहां पे उसको उसके तुलना नहीं की जा सकती। So the holiness of God is so much great and awesome, and the wrath of God is also equally great. We can't measure it. और जैसे कि परमेश्वर की पवित्रता महान है, वैसे ही परमेश्वर का क्रोध भी महान है और उसे कभी नापा नहीं जा सकता। So God is perfect. In the perfection of God, God's characteristics are beyond human limitations and understanding. God's holiness, God's righteousness, God's goodness, God's compassion. All these things are, beyond limits. We don't just understand with our human mind. और हम जानते हैं कि परमेश्वर सिद्ध है, उसके जो गुण हैं वो मानवीय समझ से परे हैं। उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी भलाई और उसकी दया, ये तमाम बातें मानवीय समझ से ऊपर है। Because Jesus Christ is truly God and truly human when he died on the cross of Calvary. And because God has no beginning, no ending, no history, no future. For God, everything is eternally present. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह सच में मनुष्य है और वो सच में परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर जो है उनका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता, कोई इतिहास और कोई भविष्य नहीं होता, वो अनंत है। This union is called hypostatic union. That means
Jesus Christ is both God and man. If you understand the characteristics of God, and you have no problem accepting Old Testament believers believing Jesus Christ, and when when people lived, when Jesus was physically available on the face of the earth for 30 years, and even we, every one of us can be connected with God because God is beyond time, space, matter. God has no history, God has no future. For God, everything is present. If you understand the characteristics of God, you will have no problem accepting this truth. It is not just cock and bull story. It's not some kind of some kind of philosophy, some kind of mysterious philosophy. और आप इस तथ्य को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये कोई दर्शन शास्त्र की बातें नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर शाश्वत है। परमेश्वर अनंत काल से है, उसका कोई समय नहीं है कि वो पहले था और अभी नहीं है। इसलिए परमेश्वर उस समय भी था जब पुराने नियम के लोग जो थे, उसलिए यीशु मसीह उस समय भी थे। और वैसे ही हम जो अभी हैं, हमारे लिए भी यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर शाश्वत है, वो उस समय भी था, वो अभी भी है। इसलिए हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं कि जो जो घटनाएं हुआ है वो हमारे लिए भी हुआ है। So, Apostle Paul is trying to help us to understand that we were united in Christ. Just as we were united in Adam, we are also united in Christ, and our old human nature was crucified along with Christ, died, buried, and resurrected again. Now we no longer live as slaves for sin. That's what Paul is saying. इसलिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हम उस पुराने आदम में भी थे और अब हम मसीह में भी हैं। आदम में थे इसलिए वो पुराना जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर आया, लेकिन हमने विश्वास किया कि हम यीशु मसीह में भी उस समय थे, इसलिए उसके उसके साथ हम मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। इस बात को हम आज जानते हैं, तो उस जानने के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। So I know because I am convicted by the Holy Spirit. I believe because I am convicted by the Holy Spirit. I have reckoned, yes, the Holy Spirit is helping me to trust Him and count upon Him. I yield, I submit, I surrender because I love the Lord, I obey the Lord because of the convictions of the Holy Spirit. और जैसे कि यहाँ पे ये वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसे जान पाया, मैंने उस पर विश्वास किया। तीसरा, मेरे मैं उसके साथ गिना गया। और चौथा लिखा है कि मैं समर्पित हो गया और मैंने अपने आप को उसको उसके उसके अंग होने के लिए दे दिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और उससे प्रेम किया। So, the sanctification process we will understand if you read once again, and then I'll close chapter 6, verses 12 to 14. We will just read self explanatory and we will close. और पवित्रीकरण के विषय को समझने के लिए हम 6 अध्याय के 12 वचन से लेकर 14 वचन को पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में सारी बातों को स्पष्ट कर देते हैं। Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not dominion over you, for you are not under law, but under grace. और 6 अध्याय के 12 से 14 वचन के बीच में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। It's good to read from verses 1:15 to the end, verse 23, because of the lack of time. Already time is ran out. I will just read one verse, verse 22, and then close. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. Self explanatory, beautifully explained. Let me repeat.
Now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have fruit to holiness and the end everlasting life. और 15 से 23 वचन और हमें पढ़ना था, परंतु समय की कमी कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन 22 वचन को पढ़ने से हमें काफी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। यहाँ लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। May the Lord bless this word and continue to speak to us. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे हमें आशीष दे और हमें निरंतर बात करते रहे। If you are hearing for the first time, you may find difficult to accept this truth, but you may have to prayerfully please go through again. I believe God will bless you. पहली बार आप इस सच्चाई को सुन रहे होंगे तो इसे ग्रहण करने में आपको कठिनाई होगी समझने में, परंतु आप प्रार्थना के साथ में इसे बार बार अध्ययन करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। I also could not understand in one go, but it took time for me to swallow because it's not with human wisdom or understanding, it is the convictions of the Holy Spirit. और मैं भी इसे एक बार में नहीं समझ पाया, बहुत बार संघर्ष करने के बाद इसे मैं समझ पाया, क्योंकि ये मानवीय बुद्धि और समझ से समझने वाली चीज नहीं है। जब पवित्र आत्मा इसमें कायल हमें करते हैं तब हमें समझ में आता है। Just as when we hear the gospel for the first time, we believed, we were blessed with the transformation. Even in the process of sanctification, when we understand how we were baptized into Christ 2000 years ago, because God has no history, no future, God is eternal. Even now, God is God of the same, God does not change. When I am connected with this God, the same principle holds good. और जैसे कि हम वचन में पढ़ रहे हैं कि पवित्रीकरण के सिद्धांत को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं होता, अंत नहीं होता, वो हमेशा से है। इसलिए हम मसीह पर विश्वास करने के कारण हम उस समय मसीह में थे और उनके साथ गाड़े गए, उनके साथ जी उठे, और इस प्रकार उनके साथ हम पवित्रीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। Yes, there are few more struggles. ये जरूर बात है कि कुछ संघर्ष हमारे साथ में है। We will try to understand when we address chapter 7 and chapter 8. और जब हम 7वें और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तब हमें और बातें समझ में आएगी। When you understand chapter 6 and chapter 7 and chapter 8, then you will appreciate the process of sanctification is such a marvelous truth. और जब आप 6, 7, 8 अध्याय को समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि पवित्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कितनी अद्भुत और महान है। May the Lord bless the word and continue to speak to us. परमेश्वर हमें आशीष दे और निरंतर हमसे बातचीत करता रहे।